प्रारंभ होगा। आप सभी अपने स्थान पर बैठेंगे। चाय की पर आ जाएगी आप लोग की आप सभी विद्वज्जनों से विनम्र प्रार्थना है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आगे के क्रम में माल्यार्पण के लिए मैं त्रिपाठी सर से पुनः निवेदन करता हूं कि प्रोफेसर विनय कुमार पांडे सर का माल्यार्पण कर अभिनंदन एवं स्वागत करें। आगे के क्रम में मैं प्रोफेसर जयशंकर के अध्यक्ष संस्कृत विभाग पूर्ण प्रज्ञा महाविद्यालय अब मैं श्रीदेव त्रिपाठी सर का अभिनंदन एवं स्वागत करें। मंचस्थ अतिथियों के संवादन के उपरांत में आज का जो मेन विषय वैदिक विज्ञान के विविध आयाम द वेरियस डायमेंशन ऑफ वैदिक साइंसेज जो टॉपिक है, इसके उपरांत में वक्ता के रूप में कर्नाटक से आए हुए अतिथि प्रोफेसर करें। पार्वती परमेश्वर मंच में उपस्थित सभी अतिथिगण मुझे मैं आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ। फ्रॉम कर्नाटका, so I am little bit knowing Hindi, so I present my paper regarding mathematics in Shulpa Sutras in English. So Veda is the source of Dharma. So Veda itself with the Jnane Dhatu, so it is knowledge, meaning is knowledge. The auxiliary forms of Veda, that is Vedangas, Shiksha, Vyakaranam, Chandaha, Niruktam, Shiksha, Vyakaranam, Chandaha, Niruktam, Jyotisham, Chandaha, Chandashtete, Shadangani, Vedasya Manishina. Atah Vedasya षड्भागाः वेदांगाः ऑक्सिलरी
or limbs of Veda. They are Shiksha, that is phonetics, and Vyakarana, that is grammar, and third one Nirukta or etymology, Chandas for prosody or mathematics, Jyotisha, anyhow you knowing astrology, and the last one, that is Kalpa. These are the 6 limbs of Veda that usually known as Vedanga. So these works constitute an important source to the history of science in India. Among these Vedangas, the Kalpa, or more commonly known as Kalpa Sutra, deal with the rules and methods for performing Vedic rituals, sacrifices, and ceremonies. So Kalpa is the last part of this one, 6 limbs of Veda. In this Kalpa Sutra, there are subdivisions as Shrauta Sutra and Grihya Sutra. The Shrauta Sutra deals with the rules for the measurements and construction of the various sacrificial fires and altars, and consequently involve geometrical propositions, measurements, and geometrical constructions. So, while performing sacrifices, the Yajna Vedi and Chittis are needed. For that, geometrical propositions and measurements are required. In this Shrauta Sutra, the last part, that is Shulba Sutra. So, in Shulba Sutra, there are likely several Shulba Sutras, namely Baudhayana, Apastapa, Kathyayana, and Manava. And Vadula is there. There are other Shulba Sutras. There are 7 Shulba Sutras mainly. In that, 4 are here, they got in written form. Others are not getting in full form. The word Shulba means a cord or a rope like this. So word Shulba means cord or a rope. Its root Shulba signifies measuring or an act of measurement. Sutra means an upper sum or a short rule. Thus, Shulba is an instrument in the construction of sacrificial fires and altars. So, by using this type of string, they constructed various geometrical figures like Vedis and Chittis. By using poles also, fixing pole wherever they require, fixing that pole, using these strings, they construct all the geometrical figures like circle, square, everything. The sacrifices of second class, there are Nitya, Naimittika and Kamya. There are 3 types of classes in Yajnas. One is Nitya Yajna, that is we should do always, every day. And the second one is Kamya, that is whatever we want requirement for that doing, that is called Kamya Yajna. They must be made in an altar of prescribed shape and size. It is stated that even a slight irregularity and variation in the form and size of the altar will nullify the object of the whole ritual and may even lead to an adverse effect. So that's why the perfection is very, very important in Shulba Sutra. Maximum care has to be taken in the construction of the altar to get the right shape and size. To achieve this, the construction of altars have been described in the Shulba Sutra. So, in Shulba Sutra, all Yajnavedis and Chittis, how to construct, that is described in that. The mathematical genius of the Shulba Sutra was mainly computational and leads to spectacular achievements in mathematics. They are in the form of Lipi or Lekha. That means in the alphabet, numbers. We are getting so many numbers. And the second one is Rupa, that is drawing and geometry. The third one is Ganita. So we can
taking that three forms. One is Lipi, another one is Rupa, and third one is Ganita. The Sanskrit words are mentioned in Shulba Sutras, which looks like mathematical words. Sankhya. In Shulba Sutra, one word is coming as Sankhya. That means who was well versed in numbers. By using numbers, by constructing Mahavedi, they are using so many numbers. Those who are expert in construction the Mahavedi, they are named as Sankhya. And Parimanajna, he is who is expert in measuring Sama Sutra Niranchaka, which means uniform stroke structure. So the Shulba is Shulba Paripanchaka. This cord is used to construct sacrificial altars as a measuring tape or like a building constructor who is used cord for proceeding to get the vertebral column. And now they are using nowadays also the same way they use this type of cords for constructing Yajnavedis and Chittis. According to Vaishnava, the geometrician, the calculator, the dictator, and the one who has taken up measuring as profession are always honored by the Shulpavits. Those who are expert in Shulpa, they are honored as Shulpavits. There is no such a word as Rajjuvik. Even though Rajju is the equivalent word in Sanskrit, they are using Rajju, but there is no Rajjuvik. Only Shulpavits is that. So even in Shulba Sutra, directly the word Rajju occurs, not Shulba in the explanation. Therefore, Shulba is not mere an instrument of measuring. If the Shulba Vidya means geometrician, the Shulba is the name of the geometry itself. So I think the name Shulba Shastra itself, Shulba Sutra itself, a book of geometry. Of all the extant Shulpas, that of Baudhayana is the biggest and is also perhaps the oldest, because the period of the Baudhayana is 800 BC. By seeing there the language, style of the words used in Baudhayana are older than the other one. Therefore it is 800 BC. It is divided into 21 chapters. The first 4 chapters contain 116 sutras, all that. So we get full description of four Shulpa Sutras, namely Baudhayana, Apastamba, Katyayana and Manava. So the Sutra period, Shulpa Sutras period can be taken as from 800 BC to 500 BC. What is Vedi? So in Shulpa Sutra usually Vedi comes. For the performance of these type of sacrifices, certain specified area is needed where various altars are constructed. A Vedi is a specified raised area on which the sacrifice to be performed and on which persons performing the ceremony, namely sacrificer, the Hota, the Adhuryu, the Rudvik and others are to take their seats on this Vedi. It is a consecrated ground where ritualistic cleaning, digging and other details of constructions are gone through. Some of the main Vedis include the Mahavedi, the Darshapurnamasa Vedi, the Shraudramani Vedi, the Prashvik Vedi, the Uttara Vedi, etc. So this is the construction of square, Chaturasra. They are constructing Chaturasra not directly by using, nowadays we are using by scales. Whereas in that they used the string like this, by drawing circles, by using circles only they constructed the square. That is the greatness of it. So perfection, because by using circles, if you draw a square like this, we get 90-degree properly. So in all 4 sides, we are getting 90-degree properly, and the square is constructed with perfection. That is the greatness of Shulba Sutra. Gardhapatya, Ahamaniya and Dakshinagni are located with perfect calculation. The Gardhapatya, the Tretagnis, you know me,
in that Dahapatya fire set up at the western end of the sacrificial chamber, the Ahavaniya fire at the eastern, the Dakshinagni on the southern side bore towards west, and the Uttara on the northern side bore towards the east of the fire hall. So this is the full plan of sacrificial ground. So we can see all these Mahavedi, Uttaravedi, everything. The altar of Dharvatya must be of the form of a circle, and the altar for the Ahamnya should be always a square, and that of Dakshina semicircular. But the area of each must be the same. That is very, very important. And it is equal to 1 square Aratni or 576 square angula. See, these are layout of different sacrifices by using this type of strings they constructed. And in that we can find the theorems that I will explain later. From the construction of these three Nityavedi, it will be easy to be recognized. We suppose the knowledge of following geometrical operations. To construct a square on a given straight line by using this type of thing, they know how to construct a square. To circle a square and its corners of the same area. That means transformation, circling the square and squaring the circle. To double a circle, so that all they are knowing. From the post on the east side, one proceeds this Vikrama. This is how to construct a Mahavedi. That is that. So this is one type of Soma sacrifice, how Vedi is constructed. It is something like a civil engineering drawing. You can see all these Triyatagnis, everything, Mahavedi, everything is there. So it is a big process of 1 year. All these three Shruta Sutrakara stated these theorems in almost same manner. If a triangle in such a way that square on the, that is Dirghamashnayarajjuhu Parshvamano Tiryangmano Yat Prutat Bhute Kurutastadu Bhayam Karoti. Tada, if a triangle is such that the square on one side of it is equal to the sum of the squares on the other side, then the angle contained by these two sides is a right angle. While constructing this type of Vedis, they use this theorem. In a rectangles having sides, and not they given this theorem, and along with that they given the triplets, whatever we are using nowadays. They are 3 square plus 4 square equal to 5 square, 12 square plus 5 square equal to 13 square, 15 square plus 8 square equal to 17 square, 12 square plus 35 square equal to 37 square, 15 square plus 36 square equal to 39 square. So since the period of Baudhayana is 800 BC, whereas Pythagoras is 549 BC, therefore the credit of Pythagoras theorem goes to Baudhayana, and we should name it as Baudhayana's theorem. We should name it as Baudhayana's theorem. In the first session it came. We are still in mathematicians how they will say according to Pythagoras theorem, the square of the hypotenuse is equal to sum of the squares of the other two sides. Still we are saying actually the credit should go to Baudhayana because his time is 800 BC, whereas of Pythagoras is 549 BC. So he is older than Pythagoras. So the great thing of Baudhayana is even he used mixed fraction numbers like 2 1 by 4 square and 3 square. Nowadays we are not using, only numbers are used for you in mathematics. They used the mixed fraction numbers. That's the greatness of Baudhayana and Apastapa. So Baudhayana's method is to be increased by the third and the third again by its own fourth less. So how they used to increase the values by using the numbers for constructing various Mahavedis, but the square remains the same. At that time they found the value of root 2. Pramanam tritiyena vardhayet tat chatustritiyena tat chatustrimshena sa sheshaha.
that is the rule that given. Its value is root 2 equal to 1 plus 1 by 3 plus 1 by 3 into 4 minus 1 by 3 into 4 into 34. So this value becomes root 2 is 1.414256. According to the modern mathematical value, it is root 2 equal to 1.4142135. So it's correct up to 5 decimals. So that is the accuracy of Shulba Sutra. So along with that, in Shulba Sutra, they even on the value of pi. Nowadays pi we are using it as 22 by 7. Actually we don't know the exact value of pi. Still they found the value up to almost near to the modern value. So next thing is transformation of areas, and that is the greatness in Shulba Sutra. I will explain by, see, this is a square. This is a square like this. So they transformed this square like this, then it becomes a triangle. See, this is a triangle. If you change like this, then this becomes a parallelogram. See, this is a parallelogram. Like this, they transformed so many mathematical theorem. See, this is a square and this is a triangle, and this will be the parallelogram. What's the greatness of it? In all these constructions, the area is constant, and even the area, see, half of it, the base is half, and the height. So area formula is half base into height. Right. Such a simple it is. So they explain like this: half base into height. That's the area of the triangle. The square and the parallelogram. Similarly, see like this. So it's changing. You can even transform a square into a rectangle by dividing the diagonal to two halves and then getting like this. Changing the position of the diagonals, they will get. So the greatness of Shulba Sutra is circling the square and squaring the circle. That is the, even nowadays it is very difficult in mathematics. Still they tried for that. See that first what they take, they take the center of the square. From that the diagonal is taken. Taking the point of the vertex, they draw a circle, and then divided the extra portion into 3 same divisions. From there, the first point is taken and drawn a circle. That area of the circle and area of the square is same. So that in that way they transform the square into a circle. Similarly, circle is transformed into square. In that way, that is diameter. That diameter is divided into 15 equal areas, equal points. In that, the last one 14 as considered, and that is constructed with a square, so that the area of the square and the area of the circle is one and the same. Similarly, square into semicircle of equal area. So like that they transformed so many geometrical figures. So we can conclude that the Shulba Sutrakaras, knowing all the geometrical forms, like they are using bricks, they construct. There are so many names are there. Nowadays in mathematics also this type of name not getting. Only square, triangle, that's all. There are Panchami, Adyartha, Ardha, Pada, Sapada, Ashtami. They named it. So these are all the geometrical figures in Shulba Sutra. Okay. So I conclude
Therefore, the Shulva Sutrakaras know the constructing relating to the rectilinear figures, their combinations and transformation, and even the theorems or rules for the various geometrical figures. Therefore, Shulva Sutra से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मंचस्थ स्थित विद्वज्जन, सभागार में स्थित अन्य विद्वज्जन, छात्र और छात्राएं, मैं सवेरे से सुबह से ही जब बैठा हूँ, मेरा कुछ काम तो प्रोफेसर धनंजय ने कर दिया है और बाकी कुछ काम जो शेष था अभी जयशंकर के प्रोफेसर जयशंकर ने कर दिया है। मेरे लिए कुछ बचा नहीं, फिर भी मैं थोड़ा दोहराता हूँ और दोहराने के लिए जो शेष बचा है, जो कि धनंजय पांडे सर ने सवेरे ही अपने पहले ही भाषण में ये कहा था, ये जिम्मेदारी इस केंद्र की है, ये जिम्मेदारी यहाँ के समन्वयक की है कि वो ये प्रयास करें कि पाइथागोरस का नाम नहीं बल्कि बौधायन का नाम उस थ्योरम के साथ जोड़ना चाहिए जो कि भारत की देन है, ग्रीक की देन नहीं है। हमारा काम है, हमारा नाम होना चाहिए, न कि किसी विदेशी का नाम। जहाँ तक पाइथागोरस का सवाल है, मैं बताऊं, अभी आपने बताया 550 ईसा पूर्व के आसपास का इनका कार्यकाल है। ये ग्रीक के एक महान संत थे, ऐसा नहीं है, हम इनको किसी भी तरह से कमतर नहीं आंक सकते हैं। इन्होंने पाइथागोरस स्कूल ऑफ थॉट्स, एक महान दार्शनिक, मैथमेटिशियन, खगोल शास्त्री थे। इन्होंने समाज सुधार किया, वहाँ पे समाज सुधारक का काम किया है। आज की डेट में वहाँ पर ये बहुत ही सम्माननीय है, लेकिन जहाँ तक उस प्रमेय का सवाल है वो हमारी देन है, पाइथागोरस की देन नहीं है। और उसके साथ हमारा नाम जुड़ना चाहिए, बौधायन का नाम जुड़ना चाहिए। ये प्रयास इस केंद्र के माध्यम से होना चाहिए। कैसे होगा, अब ये हम लोगों के जो मनीषी लोग हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, वो लोग देखें कि हम लोग इसको कैसे पाइथागोरस थ्योरम की जगह बौधायन थ्योरम कर सकते हैं। प्रमाण के स्वरूप पर मैं कुछ बताता हूँ, अभी सर ने बताया है। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम एक सिंपल सी थ्योरम है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है, जैसा हम लोग आज की तिथि में जानते हैं। इसका दूसरा जो विलोम है वो ये है, जब किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो वह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा। अब इन दोनों तथ्यों को मैं अभी जैसे आपने बताया सुलभ सूत्रों के माध्यम से मैं दोनों को एक्सप्लेन करके अपनी बात को खत्म करूंगा। ध्यान दें, सुलभ सूत्र ये केवल रस्सी के रूल को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, ये बल्कि हम ये कहेंगे कि ये साइंस ऑफ मेजरमेंट है। सुलभ सूत्र सिंपल नहीं है, ये साइंस ऑफ मेजरमेंट है। कोई भी कर्मकांड किया जाता है, कोई भी समारोह होगा तो उसका प्रारूप और उसकी फल प्राप्ति दोनों पर ही वो आधारित होता है, उसका मापन। तो ये मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ ऑल दीज राइट्स इज सुलभ सूत्र। इसी संदर्भ में मैं ये बता दूं कि आपने बताया अभी 4 सुलभ सूत्र मुख्य हैं जो अभी निर्धारित हुआ है। सबसे पहले बौधायन, उसके बाद मानवा, उसके बाद आपस्तम और चौथे स्थान पर है कात्यायन। इस बीच जो आपने भी सुना होगा, पाइथागोरस का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल
550 के आसपास का है, बौधायन 800, मानवा 750, आपस्तंभ 600 और कात्यायन के लिए 350 ऐसा लोग मानते हैं। यद्यपि लोगों का कहना है कि जो बौधायन सूत्र हैं ये जितने भी लिखे गए हैं वो 800 से 400 ईसा पूर्व के बीच में हैं। अब मैं कुछ सूत्रों का यहाँ पे उल्लेख करता हूँ। बौधायन का 48वां सूत्र आपने अभी पढ़ा, दीर्घ चतुरस्र अक्षण्या रज्जु पार्श्वानि त्र्यकमानि च यत् पृथक् भूते कुरुतस् दुभयं करोति। और जिसका अर्थ यह है कि अक्षण्या जो विकर्ण है किसी भी आयत का, उस पर जो वर्ग बना है वो अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, इस सूत्र में क्षेत्रफल नहीं बताया गया है, तो आपस्तंभ ने इसी को दोहराया और उन्होंने कहा इति क्षेत्र ज्ञानम अक्षण्या रज्जु, ये पाठ उन्होंने कहा कि दीर्घ चतुरस्र अक्षण्या रज्जु पृथक भूते यत् कुरुतस् दुभयं करोति इति क्षेत्र ज्ञानम। तो यहाँ पर किसी भी तरह का संदेह नहीं है कि जो ये सूत्र है 48वां 48 सूत्र, वो ये नहीं दर्शाता है कि विकर्ण पर बना वर्ग आयत के अन्य दोनों भुजाओं के बने अन्य दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इसी श्रृंखला में जो 39वां बौधायन का 49वां जो सूत्र है, त्रिक चतुष्कयो द्वादश पंचिकयो पंचदशिक सप्तिकयो पंचदशिक अष्टिकयो चतुर्विंशिक सप्तिकयो, ये जो सूत्र है ये दर्शाता है 3-4। तीसरा नहीं उन्होंने बताया, ट्रिपलेट्स का 3-4, फिर 12-5, फिर 15-8, फिर 24-7। ये जो इस तरह का जो ट्रिपल है वो दर्शाता है ये जो प्रमेय है यही है कि किसी भी ट्रिपल में, किसी भी त्रिक में, किसी भी आयत में जो विकर्ण का वर्ग है अन्य दोनों भुजाओं के ऊपर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अब एक जो दूसरा पहलू है जिसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम का विलोम, उसके लिए बौधायन का 30वां सूत्र 30th, पहले अध्याय का 30वां और पहले अध्याय का 42वां, इसमें इन्होंने कहा है प्रमाणम द्विगुणम दृष्ट्वा रज्जुपासम मध्ये लक्षणम करोति। तस्मिन् अर्थे चतुर्भागोन इति निरंजनम, यही निरंजन है। इसका अर्थ ये हुआ जब कोई हमारे पास एक रस्सी है, अभी सर ने दिखाया, रस्सी का मतलब यह है कि जब कोई भी एक वर्ग की रचना करनी है, किसी भी एक संपूर्ण की रचना करनी है, तो एक हम लोग भुजा लेंगे, उसको दुगुना कर देंगे। जो दुगुना पाठ हमने किया उसमें से चौथे भाग को ले लेंगे, तो इस तरह से 4 भाग 1 हो गया और एक भाग उसमें और जोड़ दिया, 5 भाग हो गया। तो चूंकि 4 भाग को दुगना किया गया था, 8 भाग हो गया। तो इस तरह से एक भाग 4 हो गया, दूसरा भाग 5 हो गया और तीसरा भाग 3 हो गया। तो उस रस्सी में जिसमें हमने एक मार्क लगाया, जिसका एक भाग 5 है, दूसरा भाग 3 है, वही हमारा नेंशन मार्क है। नेंशन मार्क ये बौधायन के सूत्र 30 में, और इसी तरह से जो 5, 12 और 13 का है वो बौधायन के 42 में 42 सूत्र में दिया गया है। तो ये जो हमारे सूत्र हैं ये गणित के हिसाब से पूरी तरह से परिपूर्ण हैं। और ये जो नेंशन मार्क है
जिससे हम लोग किसी भी संपूर्ण की रचना करते हैं, आयत की रचना करते हैं, वर्ग की रचना करते हैं, या और भी जो आवश्यकता जहाँ पड़ती है, जहाँ पर संपूर्ण रचना है उसको करते हैं, वो हम रज्जु की सहायता से, व्यंजन मार्ग की सहायता से ऐसा करते हैं। जयशंकर सर, मैं आपको बता दूं, हम लोग यहाँ पर पौधान सूत्र पर ही काम कर रहे हैं, और हमारे यहाँ मैथमेटिक्स में एक डिप्लोमा कोर्स चल रहा है वैदिक ज्योमेट्री का। तो उस वैदिक ज्योमेट्री में हम लोग बौधायन ट्रिपल्स पर ही काम कर रहे हैं, और हमने बौधायन ट्रिपल्स पर जो ऑपरेशंस हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उसके आधार पर कुछ काम किया हुआ है, उसको संकलित किया हुआ है, और वो बहुत शीघ्र ही एक बुक के रूप में आएगा इसके रूप द्वारा। और मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूँ, और इस अनुरोध के साथ, इस आह्वान के साथ कि पाइथागोरस प्रमेय नहीं, इसको बौधायन प्रमेय होना चाहिए, और यह संदेश पूरे देश में जाना चाहिए इस केंद्र के माध्यम से। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। समय का अभाव को देखते विज्ञान वेद वेदांगों के क्षेत्र में अप्रतिम कार्य करने वाले उपाध्याय जी, पूर्व वक्ता प्रोफेसर जयशंकर के जी, मौर्य जी, हमारे अग्रज प्रोफेसर शत्रुघ्न त्रिपाठी जी, संचालक पंकज त्रिवेदी जी, और हमारे समक्ष जितने भी विद्वद्गण विद्यमान हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं। हम सभी ज्योतिष के लोग बैठे हुए हैं, समक्ष भी, मंच पर भी। ज्योतिष शास्त्र का एक मुख्य कार्य काल विधान शास्त्र है। काल की व्यवस्था देना, काल का नियमन करना, काल को संयमित करना, काल का मान बताना। काल का अतिक्रमण हो गया है। मेरा विषय जो था वो वेदशालाओं की उपयोगिता में के ऊपर था। मैंने कुछ स्लाइड्स भी बनाए थे, लेकिन जब 6:30-7 बजे के आसपास फोन आया कि सत्र थोड़ा लेट हो रहा है, तो मैंने उसको तो छोड़ दिया। अब मुझे लग रहा है कि उस पर तो नहीं बोला जा सकता, उसके बारे में कुछ जरूर बोला जा सकता है। तो मैं वेदशालाओं की उपयोगिता पर नहीं बोलूंगा, वेदशालाओं की उपयोगिता के बारे में 2-4 शब्द जरूर कहूंगा। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक के साहित्यकारों को पढ़िए, भारतीय साहित्यकारों को पढ़िए या पाश्चात्य साहित्यकारों को पढ़िए। पाश्चात्यों को पढ़ने में तो कोई हम लोगों को वितृष्णा नहीं होती है, कोई कष्ट नहीं होता है, लेकिन भारतीय साहित्यकारों को भी पढ़िए जिन लोगों ने भारतीय ज्ञान विज्ञान और भारतीय चिंतन परंपरा का लेखन किया है, भारतीय मनीषा के बारे में लिखा है। सब लोग जितने भी लेखक थे, सब बेबीलोन, सुमेर, यूनान, उनकी संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान विज्ञान, कला, गणित और खनिज विज्ञान इत्यादि से इतना प्रभावित थे कि भारतीय मनीषा के ऊपर उनकी दृष्टि ही नहीं गई। उन्हें लगता था कि प्रसिद्धि यहीं से प्राप्त की जा सकती है, यही लिखने का समस्त एक सूक्ष्मतम आधार है, यही विकास की एक सही दिशा है। लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बाद जब पाश्चात्य विद्वानों के, जिसमें सार्टन, थॉमस हेथ, ग्लेनविले इत्यादि को पढ़िए, और जब उनके भारतीय ज्ञान विज्ञान के संबंधी आलेख जब सामने आने लगे, तब जाकर के भारतीय मनीषा के उस तथाकथित विद्वानों का मति भ्रम दूर हुआ और उनकी तंद्रा खुली कि अरे हम कहां किस तरफ जा रहे थे, किस तरफ हमारे शोध की दिशा जा रही थी, क्या हम कर रहे थे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो कुछ भी संस्कृति में दिखाई दे रहा है, उनके पहले के लेखकों ने सब कुछ वही प्रतिपादित किया है जिसे कि हमें कुछ आता ही नहीं था। हमने सब कुछ भारतीय पाश्चात्य देशों से ही लिया है, सुमेर और बेबीलोन से लिया है। लेकिन जब उन लोगों के आलेख पढ़ेंगे, जब सूक्ष्मतम हम अध्ययन करते हैं, तब जाकर के हमें पता चलता है कि सुमेर और बेबीलोन से यूनान ने बहुत कुछ लिया। स्वयं टालमी, जिसको आज का पाश्चात्य पूरा अपना आदि गुरु मानता है, वहीं से उनके ज्ञान का, उनके गणित का विकास आरंभ होता है, उनके विज्ञान का विकास आरंभ होता है। उन्होंने भी दशमलव का ज्ञान कहां से लिया था हमें पता है, अरब देशों से लिया था।
और अरब ने गणित का ज्ञान कहां से लिया था? अगर हम भारतीय साहित्य का समग्र अगर आकलन करेंगे, अपने वेदों को पढ़ेंगे, अपने गृह सूत्रों को पढ़ेंगे, आरण्यक उपनिषदों को पढ़ेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि उसके मूल में भारतीय मनीषा ही विद्यमान थी। सारा चक्र उलट करके पुनः इस भारतीय मूलक ज्ञान विज्ञान की तरफ आ जाता है। जब हम, और बहुत दूर की बात छोड़ दीजिए, 1500-2000 वर्ष पहले चलिए, विज्ञान की कोई शाखा नहीं थी, दो ही विज्ञान हुआ करते थे। गुरुवर बैठे हुए हैं, आपके मुंह से हम लोगों ने सुना है, आपसे पढ़ा है, एक ज्योतिष, एक आयुर्वेद। दूसरा विज्ञान नाम का कोई पदार्थ या कोई विषय या कोई ऐसी वस्तु नहीं थी। ये वेद मूलक जो ये दो विषय हैं, क्योंकि वेदों से ही सब कुछ मिलता है, वेद ही हमारे मूल है। वेदों से लेकर के ही षड वेदांग और बाकी शास्त्रों की रचना हुई, कलाएं आई, सर्व विद्या कर्तुम, सभी विद्याओं का मूल हम लोग मानते हैं वेदों को। तो एक आयुर्वेद था जिससे स्वास्थ्य रक्षण का कार्य किया जाता था, और दूसरा जो विज्ञान था वो ज्योतिष शास्त्र था, जिसके अंतर्गत आज के जितने भी विज्ञान थे, चाहे वो गणित हो, खनिज हो, रसायन हो, भूगर्भ हो, अंतरिक्ष हो, वनस्पति हो, जीव हो, जितने विज्ञान की शाखाएं हैं सब की सब उसी के अंतर्गत समाहित थी। और इन सब का आकलन जो किया जाता था, इन सब के गणित का जो केंद्र था, एक समग्र जो स्वरूप था, वो भारतीय ज्योतिष के रूप में वर्णित था। आजकल भारतीय ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी के नाम से सिर्फ विकसित किया जाता है, जाना जाता है। और इतना ही नहीं कि शुल्ब सूत्रों में या वेदों में जितनी बातें आई हैं उतनी ही हमारे ऋषियों को पता थी। उन्होंने उतने का वर्णन इसलिए किया है कि उनका लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य था वेदों के लिए, वेदों में प्रतिपादित यागों के लिए वेदियों का निर्माण करना, यज्ञ कुंडों का निर्माण करना, और यज्ञ कुंडों के निर्माण में जितनी विधियां प्रयुक्त थी सिर्फ उनका वहां पे वर्णन किया। उसके अलावा उनका प्रयोजन आगे का नहीं था, इसीलिए उनका वर्णन उन्होंने नहीं किया। इसी तरह से हमारे ऋषियों को ज्योतिष शास्त्र के विषय में जब आप आएंगे तो हाँ, ऐसा नहीं है कि ग्रहों के बारे में जो 9 बाद में घटाते बढ़ाते गए, 11 से लेकर 10, 8, 7 की जो संख्या घटती बढ़ती रहती है, इनके बारे में भारतीय मनीषा को पता नहीं था। उन्हें पता था, लेकिन उनके प्रभाव का चूंकि वैश्विक विश्लेषण नहीं संभव था, लेकिन उनका प्रत्यक्ष कोई प्रभाव नहीं था, इसलिए उसका प्रतिपादन किया ही नहीं गया, उसकी जरूरत ही नहीं थी। क्योंकि उनका जो लक्ष्य था वो था कि वेद विहित मार्गों का अनुसरण करते हुए एक स्वस्थ जीवन यापन करना, एक प्रकृति में संतुलन बनाए रखना, संतुलन, प्रकृति में कोई विकृति न उत्पन्न हो, इसके लिए मार्गों का प्रणयन करना, धर्म सम्मत विज्ञान की स्थापना करना, जिससे कि कोई समाज में विकृति न उत्पन्न हो। और हमारे यहाँ ज्ञान और विज्ञान, धर्म और विज्ञान हमेशा एक दूसरे के पूरक रहे हैं, लेकिन जब पाश्चात्य साहित्य को आप देखेंगे तो वहां पर विज्ञान और धर्म दोनों एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। और वहां के धर्म शास्त्रीय उनके धर्म ग्रंथों में वर्णित सिद्धांतों के विपरीत सत्यता का प्रतिपादन करने के लिए कितने आचार्यों को जिंदा जला दिया गया, चौराहे पे रख करके गोली को पत्थरों से मार करके उनको मार दिया गया, इसका इतिहास आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अपने यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अपने यहाँ हमेशा ही धर्म मूलक, धर्म सम्मत विज्ञान की स्थापना रही है। धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक रहे हैं। और जो कुछ भी जब हम इस लक्ष्य की तरफ जाते हैं और ज्योतिष शास्त्र को पढ़ना चाहते हैं, ज्योतिष शास्त्र को देखते हैं और ज्योतिष शास्त्र के उद्देश्य के बारे में जब हम देखते हैं, जो एक प्राचीनतम विज्ञान है, उसमें एक है ज्योतिष शास्त्र फलम पुराण गणित आदेश इत्युच्यते। आदेश ज्योतिष शास्त्र का मुख्य लक्ष्य है। आदेश का मतलब है लोक में शुभाशुभ फल का निदर्शन करना, वेद विहित कर्मों के संपादन के लिए शुभ काल का प्रतिपादन करना, और उस सब शुभ काल के प्रतिपादन में जो मुख्य आधार है, आजकल जो ज्योतिष और बाकी सब विषयों को लेकर के जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, जो हाहाकार मचा हुआ है, जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, जो उंगलियां उठ रही हैं, वो सब इसीलिए हुई है कि जिस विषय पे चर्चा करने के लिए आज हम लोग उपस्थित हैं, भारतीय वेधशालाएं, उनका धीरे धीरे प्रयोग क्षुण हो जाना, समाप्त हो जाना। पंचांगों की एक रूपता नहीं है, व्रत पर्वों की एक रूपता नहीं है, ज्योतिष में ग्रह प्रतीति को प्राप्त नहीं होते, उनके द्वारा बताए गए सिद्धांत स्खलित, ये सब इसीलिए हुआ। आजकल उंगलियां इसलिए उठ रही हैं कि हमने अपने वेधशालाओं का प्रयोग बंद कर दिया। और ये वेद विद्ध धातु से जो उत्पन्न है,
हम जानते हैं कि सामान्यतया किसी भी ग्रह नक्षत्र आदि पिंडों का जो अन्वेषण है, देखना है, वही वेद के शब्द से व्यवहृत किया जाता है। और वो वेद नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हम नलिका आदि यंत्रों से या नग्न चक्षु से उस ग्रह नक्षत्र आदि का वेद करते हैं, देखते हैं उसको, वह इससे वेदित होता है हमारी दृष्टि से, इसलिए इसका नाम वेद हुआ। दो तरह के वेद होते हैं, एक तो सामान्य नग्न चक्षु से वेद, जिसे हम सूर्य को देख रहे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं, ये प्रत्यक्ष वेद है, प्रत्यक्ष चक्षु का वेद है। और दूसरा जो वेद होता है, जो वास्तविक एक परिभाषिक अर्थ में प्रयुक्त है, वह है किसी यंत्र आदि के माध्यम से, नलिका आदि यंत्र हो या अन्य किसी यंत्र हो, उन यंत्रों के माध्यम से ग्रह नक्षत्र आदि आकाश में विद्यमान पिंडों की वास्तविक स्थिति, गति इत्यादि का पता लगाना। और उसके लिए हमारे ऋषियों ने जो वेदों में वर्णन प्राप्त होता है, संहिताओं को जब आप देखेंगे, नक्षत्राणाम सोमवाति इत्यादि, वो एक नहीं हजारों असंख्य वर्णन मिलेंगे जहां पर वेद संबंधी देखने के, उसके ग्रह नक्षत्रों की युति इत्यादि का वर्णन प्राप्त होता है। उसके विषय में नहीं जाएंगे, बहुत सारे विषय हैं। धीरे धीरे परिष्कृत होता हुआ वेदांगों में जब आया, तो वेदांगों में अपने समग्र स्वरूप को प्राप्त करती है यह वेदशाला। उसके पहले भी कपाल यंत्र, शंकु यंत्र, नलिका यंत्र इत्यादि का प्रयोग होता था, जिसके द्वारा हम ग्रह नक्षत्र आदियों को सहजता पूर्वक देख सकें, काल का ज्ञान कर सकें। इन यंत्रों के वर्णन भी आपको प्राप्त होते हैं। और धीरे धीरे परिष्कृत रूप में जब हम लोग परंपरा में आते हैं, जब एक पौरुष ग्रंथों के क्रम में आते हैं, तो पौरुष ग्रंथ के क्रम में सर्वप्रथम जब वराह, मिहिर, आर्यभट्ट इत्यादि को देखते हैं, तो वहां आकर के इनके यंत्रों का एक समग्र स्वरूप हमारे सामने देखने को मिलता है, जिसमें मुख्यतया कपाल यंत्र, चक्र यंत्र, नलिका यंत्र, शंकु यंत्र इत्यादि। और आगे जब बढ़ते हैं तो उसके बाद ब्रह्मगुप्त के बाद भास्कराचार्य, गणेश, दैवज्ञ, कमलाकर, और जब इसका जो स्वर्णिम काल एक जब आता है, वो आता है सवाई जय सिंह के समय में। इसके पहले के आचार्यों ने भी वेद यंत्रों को बनाया, वेद यंत्रों को बना करके ग्रह नक्षत्र आदि का वेद किया। अनेक ग्रंथों में वेद की पद्धतियां भी वर्णित हैं, वेद यंत्रों को बनाने की विधियां भी वर्णित हैं, लेकिन कहीं एक सूक्ष्म संकेत मिलता है तो कहीं समग्र वर्णन मिलता है। लेकिन जब हम 17वीं शताब्दी में आते हैं, 1700 से लेकर के 1734 तक, 1744-45 तक जो सवाई जय सिंह का काल होता है, जिसको जयपुर नगर जिन्होंने बनाया, वो स्वर्णिम काल था आधुनिक उस युग का। 5 वेदशालाएं बनवाई, जो आजकल धरना देने का जन जागरण के काम में आता है। उस समय दूसरा जन जागरण हुआ करता था उससे, जिसको हम लोग जयपुर, दिल्ली, एक बनारस में भी है, मानसिंह घाट पे, मथुरा और उज्जैन, 5 वेदशालाएं। क्योंकि जो स्थिति अभी वर्तमान की थी, वही स्थिति उस समय भी ग्रह नक्षत्र आदियों की हो चुकी थी। जो परिणाम थे वो व्यभिचरित होने लगे थे कालांतर जन्य प्रभाव से। क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा रही है, क्योंकि यह जो सौर मंडल है, यह सौर मंडल स्थिर नहीं है, इसीलिए इस सौर मंडल में विद्यमान ग्रह नक्षत्र आदि पिंडों के लिए कोई अस्थायी सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि जब उसकी स्थिति ही स्थिर नहीं है तो कोई अस्थायी सिद्धांत संभव नहीं। संकुचन और विकुचन हो रहा है पूरे ब्रह्मांड में, ग्रह नक्षत्र आदियों के भ्रमण पथ में। ऐसी स्थिति में जो भी सिद्धांत बनाया जाता है 500-1000 वर्ष में, उसमें परिवर्तन अपेक्षित होता है, परिवर्तन मस्ट जरूरी होता है। और उन्हीं परिष्कार के लिए इन वेदशालाओं की स्थापना समय समय पर होती रही है। और वही हमारे आधार है, संकेत। हमने काल नियमन की बात की, और समय ही क्योंकि विषय ऐसा है कि मैं आगे जा रहा हूं, नीचे से संकेत भी मिल रहा है। बहुत विस्तृत, बहुत ही गंभीर विषय है। और आज अगर पुनः हम अपनी उस प्रतिष्ठा को प्राप्त करने में अगर सक्षम हो सकते हैं, तो निश्चित ही वेदशालाओं की स्थापना के क्रम में, और वैदिक विज्ञान केंद्र ने ऐसा उपक्रम एक आरंभ भी किया है, इनका उनकी एक परियोजना भी है वेदशालाओं के निर्माण की। तो निश्चित ही वेदशालाओं को सिर्फ दर्शनीय और पर्यटन स्थल के रूप में न बना करके एक जो हमारे जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के अनुरूप बनाएं, जिससे कि हम पुनः उस प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठापित कर सकें, और पुनः हम भारतीय ज्योतिष में प्रतिपादित और वेदांगों में प्रतिपादित गणित के नियमों और सूत्रों के अनुसार उस विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित हो सके। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और जो कुछ भी कहा वो हरि जी के चरण कमलों का आशीर्वाद है। आपके चरण कमलों में मैं अपनी प्रणामांजलि समर्पित करता हूँ। धन्यवाद।
देखें, हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में भी खगोल भूगोल शब्द का प्रयोग कर देते हैं। कितना बड़ा अंतर है मैं दिखा रहा हूं हमारी परंपरा में और उनकी परंपरा। हमारे यहां खगोल में ही भूगोल होता है, भूगोल की कोई पृथक सत्ता नहीं। इस आकाश के मध्य में वो भू का निवास है, भूमि का मध्य समंदात अंडस्य व्योमनि संस्थिता, आकाश में बीच में। तो इस खगोल के बीच में सारे चीजें हैं, भू भुवः स्वः महः जनः तपः, ये ऊपर की बात हो गई। आप नीचे आए तो जो 7 तल हैं उनकी बातें भी करते हैं। इतना बड़ा व्यापक है हमारा यह खगोल। खगोल के विषय में बहुत सारी चर्चा है। यह विषय मूल रूप से सिद्धांत ज्योतिष का। ख का विस्तार कितना है, कर व्याप्ति तथा रवे कटाह द्वितीय शैव संपुटम गोलकाकृति का 2 कड़ाही लेके मिला दीजिए, वैसा यह इस ब्रह्मांड का स्वरूप है। कहते हैं कहां तक है, तो जहां तक सूर्य का प्रकाश जाता है। गुरुजी एक श्लोक सुनाते थे, हमें लगता है सुनाएंगे, हम भूल रहे हैं कि न जानीमः ततः एतावत् वानरैशक्यं गन्तुं वानरपुंगवा। तो कहते हैं न जानीमः ततः परम, कहा कि वो सीमा उसके आगे क्या है। जहां तक सूर्य का प्रकाश खत्म हो गया उसके बाद भी एक प्रमाण है। ये आकाश कक्षा की बात करते हैं, वहां तक इतना बड़ा विस्तार है और व्यापक है। इसके अंदर जितनी भी गतिमान होने वाली घटनाएं हैं इस खगोल के अंतर्गत, हम सभी उसी में आते हैं, उससे बहिर्भूत नहीं होते। क्योंकि हमें लगता है कि 19 अरब के आसन्न इस पूरे ब्रह्मांड में आकाश गंगा की बात करते हैं आधुनिक वैज्ञानिक। हमारे यहां अनंत का प्रतिबोधक, हम उसको लिमिटेड से अनलिमिटेड कर सकते हैं। इतना बड़ा व्यापक हमारा यह खगोल विज्ञान है, इसमें सब चीज आ जाता है। थोड़ी सी चर्चा करें। सिद्धांत में तो बहुत है, जैसे मैंने बताया, उसका प्रमाण भी है, गणितीय प्रमाण भी है। पादों क्षत्रित भूमिति योजनानि खेतात बजट तनुदिनम निजवर्तमनि में फिर उस प्रमाण से कहा जब इतना में ये चलते हैं तो इस हिसाब से क्या है, तो एक कल्पे ग्रहाक्रामति योजनानि, ये प्रमाण लगा दिया। चूंकि श्लोक है, हम उसको क्या बताएं, समय नहीं है। ये सारी बातें हैं सिद्धांत में, सबका स्पष्टीकरण है। फलित में क्या है, जो आप 12 खाने का चक्र जो ज्योतिषी लोग कुंडली में फट से उतार देते हैं, आपके लिए सामान्य है, हमारे लिए असामान्य है। पूरा खगोल है उसी में। आदमी को बीच में बैठा के पूरा वो ग्रह की स्थितियां रहती हैं, वो पूरे ग्रहों की स्थितियां रहती है। क्रांतिवृत्त का पोजीशन होता है। ज्योतिषी को सप्तम लग्न बता दीजिए तो लग्न चतुर्थ दशम सब निकाल लेगा, लग्न बता दीजिए फिर निकाल लेगा। उससे पूरा एक मनुष्य के जीवन में जितनी भी घटनाएं होती हैं, क्योंकि आप सब खगोल के बीच में ही आप हैं, तो ग्रहों का प्रभाव आप पे कैसे पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, किस तरह से, ये सारा कैलकुलेशन होता है। तीसरी जो हमारी प्रविधि है ज्योतिष में, वो है संहिता शास्त्र की। संहिता में क्या है, एक व्यापक परिगणना होती है। भूकंप कब होगा, ग्रहों के माध्यम से, आकाशीय स्थिति के माध्यम से, प्रतिसूर्य के माध्यम से। सूर्य का कलर बदला आप लोग देखे होंगे, प्रतिसूर्य भी दिखता है, कभी कभी लगता है 2 सूर्य हैं आकाश में। कभी कभी बादल की ऐसी आकृति बनते आपको दिखती है, लगता है कि कोई राक्षस है, कोई स्वरूप है, उसका प्रिडिक्शन अलग है। आकाश में जितनी उल्कापात होते हैं, जितने परिवर्तन होते हैं, रंग बदलता है, ध्वनि बदलती है, इंद्रधनुष का स्वरूप बदलता है, ये सारे खगोलीय पिंड हमें कोई न कोई इंफॉर्मेशन देते हैं। हम ज्योतिषी उसको कलेक्ट करके गणितीय प्रविधि में कभी प्रयोग गणितीय में करते हैं, कभी व्यक्ति विशेष पर करते हैं, और कभी कभी पूरे समूह पे करते हैं कि इस एरिया में भूकंप आएगा, यहाँ वृष्टि होगी, यहाँ अवृष्टि होगी, यहाँ अनावृष्टि होगी। इस तरह की गणनाएं हमारे खगोल के माध्यम से हम लोग करते रहते हैं।
इतिहास की बात करेंगे तो बड़ी पुरानी ऋग्वेद देखें, 10वें मंडल में है चर्चा। अथर्ववेद देखें, वहां भी परिचर्चा है। शुक्ल यजुर्वेद में भी है। आप अभी सूत्र की बात कर रहे थे। एक लंबी परंपरा चली आती है और आर्यभट्ट आए, उन्होंने सारा एक सिस्टमेटिक ढंग में जो फैला हुआ था उसे कलेक्ट करके एक स्वरूप में दिया और आज लेटेस्ट अभी वर्क हो रहा है। आज भी जो सारणी ग्रंथ की परंपरा थी वो सिद्धांत में कन्वर्ट हो गई। क्यों? कदाचित सिद्धांत की रही थी। तो जितने लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं वो सिद्धांत के माध्यम से कर रहे हैं, न कि सारणी के माध्यम से। तो जो हम एक अच्छी दिशा में जा रहे हैं, एक विशुद्ध परंपरा हमारी हो रही है। मैं मानता हूं कि मेरा 8-9 मिनट हो चुका है और अगर बच गया 1-2 मिनट तो मैं अपना ट्रांसफर कर रहा हूं उपाध्याय जी को। अच्छे वक्ता हैं और सबको नमन करते हुए आपके प्रति प्रणाम पूर्वक आभार व्यक्त करते हुए मैं कार्यक्रम को गति देते हुए इसी क्रम में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर अरुण कुमार उपाध्याय सर, जो पूर्व डीजीपी उड़ीसा राज्य से आए हुए हैं। आप आए सर और आकर हम सबको अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित करें। देवतांग वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सत्यं प्रतं सत्यपरं सत्यं सत्यस्य योनिं निहितं सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनित्यं सत्यात्मकं तां शरणं प्रपद्ये। मैं इस सभा में विचित्र प्रकार का मनुष्य हूँ, क्योंकि शिक्षा मतलब व्यवसाय से या शिक्षा से मैं इस समाज का व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन मैंने जीवन में जो कुछ अध्ययन किया वो मेरा, उसमें मेरी कोई योजना नहीं थी। मेरे जीवन मरण का प्रश्न था एक तरह से। मैं उसका विस्तृत इतिहास नहीं बता सकता, तो मुझे यह काम करना पड़ा। मेरी कोई अपनी योजना नहीं थी। गीता की भाषा में कह सकते हैं निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। भगवान की जैसी योजना थी मैं वैसे करता गया। मैंने कभी कोई योजना नहीं बनाई थी। तो हर बार बाध्य होकर के, जैसे मैंने 1974 में एमएससी फिजिक्स किया पटना से, 1974 में, 1976 में मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में था, तो देहरादून से फॉरेस्ट्री में एमएससी किया। 1981 में फिर एक विशेष कारण से मैंने उत्कल विश्वविद्यालय से एमएससी गणित किया। उसके बाद फिर एक परिस्थिति आई तो मैंने बिना किसी डिग्री के संस्कृत का प्राचीन ज्योतिष और आधुनिक ज्योतिष दोनों का अध्ययन किया। तो प्राचीन ज्योतिष के अध्ययन के क्रम में आचार्य रामचंद्र पांडे जी की भी कुछ पुस्तकें पढ़ा और इस अर्थ में वो मेरे गुरुओं में से एक है। तो भारतीय ज्योतिष में कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे पाइथागोरस थ्योरम की चर्चा होती है कि वो बौधायन थ्योरम कहा जाए। तो यह बहुत साधारण चीज़ है। उससे बहुत संपूर्ण त्रिभुज पर आधारित ज्या सारणी की गणना उससे बहुत पहले की है। कई कुछ ग्रंथों ने उसका स्रोत नारद को बताया था कि नारद ने पहले बनाई थी। आर्यभट्ट की ज्या सारणी के बारे में डेविड पिंगली ने प्रचार किया कि हिप्पार्कस के साइन टेबल की कॉपी है, नकल है। तो मैं उस सम्मेलन में था, मोतीलाल बनारसी दास की तरफ से आयोजित हुआ था, वो एक आयोजकों में थे। तो मैंने डेविड पिंगली से पूछा कि वो हिप्पार्कस का साइन टेबल कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि वो कहीं उपलब्ध नहीं है। तो मैंने कहा कि आज भी आप बना दीजिए हिप्पार्कस के नाम से। तो बोला कि नहीं, हमको बनाना नहीं आता है, हमको ग्रीक नहीं आता है, और ग्रीक जो नंबर सिस्टम है या रोमन नंबर साइन टेबल बन ही नहीं सकता। उन्होंने स्वीकार किया। तो मैंने कहा कि फिर अपना जो चीज़ था ही नहीं है या संभव नहीं है, उसकी नकल आर्यभट्ट ने कैसे कर ली? हिप्पार्कस ने न तो कभी साइन टेबल बनाया था, न ग्रीक या रोमन नंबर सिस्टम में साइन टेबल बन सकता है। दशमलव पद्धति उनके यहाँ नहीं थी। तो जो चीज़ नहीं थी उसकी नकल आर्यभट्ट ने कैसे कर ली? दूसरी चीज़ है शुल्ब सूत्रों के बारे में। जैसे छाया के गणना के, छाया से दिशा वगैरह की गणना करने के लिए कंपास का व्यवहार होता है, तो उसको कर्कट कहते थे। तो कई जो निर्माण है, ज्यामितिक आकृति है, वो कंपास से नहीं बन सकता है। जैसे दीर्घवृत्त हम नहीं बना सकते हैं कंपास से, या परवलय नहीं बना सकते हैं, या वृत्त के बराबर वर्ग नहीं बना सकते उसके क्षेत्रफल के बराबर।
तो इन कामों के लिए शुल्क का प्रयोग किया जाता था, जो उससे जो कंपास से संभव नहीं था। तो उसका इतना ही मैं पर्याप्त है। उसके बाद कुछ ज्योतिष पुस्तकों के काल का वर्णन करना चाहता हूँ। हम लोग आर्यभट्ट को कहते हैं कि उन्होंने शून्य का आविष्कार किया या पृथ्वी के घूमती है इसका आविष्कार किया। आर्यभट्ट ने एक भी आविष्कार नहीं किया था। उन्होंने स्वयं लिखा है कि स्वयंभू मनु के समय का जो पितामह सिद्धांत था उसका उन्होंने नया रूप में संक्षेप में वर्णन किया है, उन्होंने स्वयं लिखा है। और चूंकि पितामह सिद्धांत को आर्य सिद्धांत कहते थे, इसलिए आज भी इस क्षेत्र में पटना बनारस आदि में आर्य का मतलब पितामह ही होता है, आजा कहते हैं आर्य। तो मूलतः पितामह सिद्धांत का उन्होंने पुनः संपादन किया था, संक्षेप किया था, उद्धार किया था, जो भी कहें, इसलिए उनको आर्य सिद्धांत। उन्होंने कई चीजें लिखी है, जैसे लिखा है कि उज्जैन से 90 डिग्री पूर्व में यमकोटि पत्तन है। वो कब यमकोटि पत्तन गए थे? 180 डिग्री पूर्व में सिद्धपुर है, सूर्य सिद्धांत में भी है। वो सिद्धपुर या मेक्सिको कब गए थे? अगर जाते भी तो कैसे निकालते कि वो ठीक 180 डिग्री पूर्व में है? तो इसमें एक रामायण में उल्लेख है किष्किंधा कांड के 40वें अध्याय में, वो वाल्मीकि रामायण में, कि सुग्रीव ने पूर्व दिशा में वानरों को भेजा था। तो उन्होंने कहा कि महासागर पार करने पर जहाँ पूर्व दिशा कांत होता है उसका चिन्ह देने के लिए ब्रह्मा ने एक द्वार बनाया था। तो ठीक उसी स्थान पर उज्जैन से ठीक 180 डिग्री पूर्व में एक छोटा सा बहुत सबसे पुराना पिरामिड है मेक्सिको का, जिसका अंग्रेजी अनुवाद है पिरामिड ऑफ द फर्स्ट गॉड। ब्रह्मा का अनुवाद कर दिया है फर्स्ट गॉड, और ठीक 180 डिग्री पूर्व में है। तो ये गणना प्राचीन काल में कैसे हुई थी, और निश्चित रूप से आर्यभट्ट यह गणना करने में समर्थ नहीं थे। या आर्यभट्ट और लल्ले के वृद्धि तंत्र में लिखा है कि दक्षिणी ध्रुव स्थल भाग में है, उत्तरी ध्रुव जल भाग में है। अगर आर्यभट्ट को हेलीकॉप्टर से भी उठा करके भेज देते वहां दक्षिण ध्रुव पर, पहले तो उनको यही नहीं पता चलता कि हम दक्षिण ध्रुव पहुंचे कि नहीं पहुंचे, हम कहाँ पर हैं। दूसरे उनको ये नहीं पता चलता कि 2 किलोमीटर बर्फ के नीचे जमीन है या पानी है। तो ये 1988 में पहली बार पता चला कि दक्षिण ध्रुव वास्तव में जमीन पर ही है, और उसके बगल में पानी के पतला समुद्र है। तो समुद्र के किनारे है लेकिन समुद्र पर नहीं है, जमीन पर ही है। ये चीज आर्यभट्ट ने लिखी थी। तो ये सब पुराने जमाने का ज्ञान था जो कि आर्यभट्ट किसी भी हालत में नहीं कर सकते थे। या चंद्रमा की दूरी के जो लिखी है, सबसे नजदीक वाले ग्रह की दूरी, शनि वगैरह की बात आप छोड़ दीजिए, चंद्रमा की दूरी कैसे निकालते हैं? मान लीजिए कि वो पटना में रहते थे, पटना के पास खगोल में रहते थे, जिसका नाम आज भी खगोल है। वहां से सबसे दूर का स्थान है कन्याकुमारी। पटना से और कन्याकुमारी से दोनों जगह से एक ही समय में चंद्रमा की दूरी देखते, चंद्रमा की दिशा देखते, तो उस कोण में जो अंतर होता उसके आधार पर चंद्रमा के दूरी की गणना हो सकती है। तो मान लीजिए कि पटना और कन्याकुमारी के अक्षांश और देशांतर का मान सेकंड तक, डिग्री मिनट सेकंड तक शुद्ध है, मतलब 1 सेकंड तक की उसका मान लीजिए कि है। समय का मान दोनों का एक साथ दर्शन होना चाहिए था, तो समय की गणना में भी 1 सेकंड की भूल है। अब उस समय कैसे मिलाते थे ये दूर की बात है। और कोण की माप में चंद्रमा किस दिशा में है, उस कोण की माप में भी डिग्री मिनट सेकंड में 1 सेकंड तक का अंतर होता, तो 22% से ज्यादा की भूल होती है। तो आर्यभट्ट ने इतनी शुद्ध गणना कैसे की? उनके पास न तो कोई साधन था, न उनके युग में संभव था। ये सभी प्राचीन गणनाओं के का सारांश है। तो कुछ पुस्तकों का मैं काल निर्धारण कर रहा हूँ। जैसे महाभारत के वन पर्व के 230 अध्याय में है कि इंद्र ने कार्तिकेय से कहा कि अभिजीत नक्षत्र का पतन हो गया है, आप ब्रह्मा से सलाह करके नया कैलेंडर आरंभ करें। तो अभिजीत नक्षत्र का पतन तो बहुत कई सौ वर्षों से हो रहा था। तो उस समय उसके आसपास धनिष्ठा नक्षत्र से, अभिजीत के बदले धनिष्ठा नक्षत्र से वर्षा आरंभ हुआ। तो उसके आसपास धनिष्ठा नक्षत्र से वर्षा ऋतु का आरंभ होता था। संभवतः इसी कारण संवत्सर को वर्ष कहा गया। और उसके पहले स्वयंभू मनु के समय में या उस समय से अभिजीत नक्षत्र से वर्ष का आरंभ चला रहा था। ये भी महाभारत में लिखा है कि पहले अभिजीत नक्षत्र से वर्ष आरंभ होता था। तो स्वयंभू मनु का समय लिखा है कि 29,102 BC में वो ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण वगैरह के आधार पर ये उनका समय है, यह मत्स्य पुराण में भी है। तो कार्तिकेय का समय 15,800 BC होगा।
जो उन्होंने लिखा है कि धनिष्ठा नक्षत्र से वर्ष का आरंभ होगा, उससे वर्षा ऋतु का आरंभ होता था और ये वेदांत ज्योतिष की पद्धति थी। आर्यभट्ट सूर्य सिद्धांत की जो गणना है उसमें 4 तरह के जो दीर्घकालिक परिवर्तन है वो 10,000 बीसी के हैं। जैसे उस समय अगस्त तारा का स्थान क्या था दक्षिण, या उस समय पृथ्वी का दीर्घवृत्त का इसेंट्रिसिटी कहते हैं वो कितनी थी, या पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना था, या उस समय दिन का मान कितना था। ये चारों गणनाएं 10,000 बीसी की हैं। आर्यभट्ट की जितनी गणना है वो 3100 बीसी की है और वो वही गणना है जो मायन कैलेंडर में है, उसी तरह की गणना है। ये पूरे विश्व का एक तरह का ज्ञान था जो भारत में सुरक्षित रखा। और बाकी जैसे ब्रह्मगुप्त वगैरह ने ब्रह्मगुप्त और ब्राह्मण ने अपना समय दिया है, उन लोगों ने 6 से 12 बीसी के शक के आधार पर गणना की है, लेकिन उसको मान लेते हैं कि शालिवाहन शक के आधार पर गणना हुई है, तो इसमें भूल होती है। या कालिदास का ज्योतिर्विद्याभरण है, वो भी उसी 6 से 12 बीसी की गणना से काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको शालिवाहन शक मानते हैं, इसलिए भ्रम होता है। अपने मृत्यु के 80 वर्ष के बाद के शालिवाहन शक का बराह में प्रयोग नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी तक हम लोग वही मान रहे हैं। तो जैसे ज्योतिर्विद्याभरण का बालकृष्ण दीक्षित जी ने 1168 ईस्वी का उसका समय बना है, वो भूल है। विक्रम संवत इसलिए नया संवत शुरू हुआ था कि कलयुग के 3000 वर्ष के बाद ऋतु चक्र 1.5 मास पीछे खिसक गया था। आप ऋतु चक्र या गणना को आप 1.5 मास पीछे खिसकाइए तो ठीक विक्रमादित्य के समय की गणना आएगी ज्योतिर्विद्याभरण में। तो इसको हम लोग विक्रम संवत क्यों बना था और क्यों नया संवत चला, उसको बिना सोचे हम लोग सिर्फ शालिवाहन शक के आधार पर गणना करना शुरू कर देते थे, जो कि संभव नहीं है। अपने मृत्यु के बाद वाले कैलेंडर के हिसाब से कैसे गणना कर सकते हैं। अब मैं काल के विषय में संक्षेप में कहूंगा, समय बहुत कम है। काल का ये 53 प्रकार की परिभाषा एक किताब में है, विश्व की काल यात्रा में। मेरी परिभाषा संक्षेप में यह है कि परिवर्तन का जो आभास है उसको हम काल कहते हैं। परिवर्तन क्या होगा, किसी वस्तु पिंड या कण की स्थिति में और स्थान में जो परिवर्तन होता है इसका हम जो अनुभव करते हैं वो काल है। तो एक तो नित्य काल है सूर्य सिद्धांत में। नित्य काल लोगों का क्षरण करता है, उसकी परिभाषा गीता में है, कालोस में लोग का क्षय प्रवृत्त। लोगों के क्षय की दिशा में जो काल बढ़ता है वो उसको हम नित्य काल कहते हैं। वो अंत में आदमी मर जाता है या कोई वस्तु बिल्कुल नष्ट हो जाती है, इसलिए उस काल को मृत्यु भी कहते हैं। लेकिन उससे काल की माप नहीं होती है। जिस काल से माप होती है उसको हम जन्य काल कहते हैं। उसका भी लिखा है कालः कलयताम अहम, जो गणना करने वाला काल है उससे मैं ये जन्य काल हूँ। जन्य काल क्यों कहते हैं, जो प्राकृतिक काल चक्र है दिन मास और वर्ष का, उसके हिसाब से हमारा यज्ञ होता है। यज्ञ से कोई उत्पादन या सृष्टि होती है। सहयज्ञ प्रजा सृष्टा प्रोवाच प्रजापति अनेना प्रसेवितम एष उत्कृष्ट कामधुक्, गीता के 3 अध्याय का श्लोक है कि जिससे उत्पादन हो इच्छित वस्तु का उसको हम यज्ञ करते हैं। तो जितना जैसे कृषि का यज्ञ है, यज्ञाभवति पर्जन्या ये संवत्सर के चक्र में हो रहा है, तो इस चक्र की माप हो सकती है। प्रायः रिपीट होता है, जो नित्य काल है उसका रिपीट नहीं होता है। एक बच्चा से बूढ़ा हो जाएगा लेकिन बूढ़ा से वापस बच्चा नहीं हो सकता, वो एक ही दिशा में चलता है। लेकिन ये बार बार वो चक्र में घूम रहा है, दिन का चक्र है, मास का चक्र है, वर्ष का, तो इससे माप होती है और जनन होता है या सृष्टि होती है, इसलिए इसको जन्य काल कहते हैं। और एक अक्षय काल है, अहमेवाक्षय काला धाताहं विश्वतोमुख, पूरे विश्व को देखिएगा तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जिसको फिजिक्स में कहते हैं कंजर्वेशन थ्योरम। तो ये अक्षय काल है। और एक परात्पर काल है, बहुत सूक्ष्म या बहुत विराट का अनुभव नहीं होता है, वो हमारे अनुभव से परे है, उसको परात्पर काल कहते हैं। इनका जो पुरुष रूप है, जो नित्य काल का पुरुष है वो क्षर पुरुष है, जो जन्य काल का पुरुष है वो अक्षर पुरुष है, और वो जो अक्षय काल है उसका अव्यय पुरुष कहते हैं, और बाकी परात्पर पुरुष है जिसका हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो काल की गणना कैसे होती है, तो हमारे यहाँ 2 तरह की गणना है। एक तो काल की गणना है, सूर्य सिद्धांत के 14वें अध्याय में 9 प्रकार के काल हैं। काल की कैसे गणना हो, सृष्टि का जो चक्र है उसके अनुसार काल की गणना होती है। तो उसमें सबसे पहले हम ब्रह्मा के काल तक की गणना करते हैं, उससे ऊपर के भी काल है। जैसे विष्णु का जो काल है वो आज की भाषा में गैलेक्सियों के निर्माण और विनाश का काल है। जो पराशक्ति का काल है आप गणना करके देख सकते हैं,
वो आजकल जो अनुमान है प्रोटॉन का जो हाफ लाइफ पीरियड है फिजिक्स में, उसका जो अनुमान है वो लगभग पराशक्ति के काल के समान है, लेकिन उसकी गणना ज्योतिष में नहीं करते हैं। हम लोग ब्रह्मा के काल से ही शुरू करते हैं। तो ब्रह्मा के काल की परिभाषा सूर्य सिद्धांत के 12वें अध्याय में कि पृथ्वी अपनी औसत कक्षा गति से अगर ब्रह्मांड मतलब गैलेक्सी की परिक्रमा करे, उसमें जितना समय लगेगा वह ब्रह्मा का दिन होगा। ब्रह्मा का दिन और रात में मैंने 8 अरब 64 करोड़ वर्ष में जितने दूर तक यहाँ से प्रकाश जाएगा वह दृश्य जगत होगा, जिसको तपलोक कहते थे। आज की भाषा में दृश्य जगत विजिबल यूनिवर्स कहते हैं। प्रजापत्य काल प्रजापति निर्माण करता है, तो निर्माण का आरंभ कहाँ से हुआ? गैलेक्सी से हुआ। तो गैलेक्सी का जो अक्ष भ्रमण काल है उसको मनवंतर कहते हैं। तो ये परिभाषा ज्योतिष ग्रंथ में कहीं नहीं लिखी है। सतपथ ब्राह्मण के 12वें अध्याय में है कि गैलेक्सी में जितने तारा है उतने ही हमारे शरीर में लोमगर्त या सेल है, और उनका माप दिया हुआ है कि 1 सेकंड का प्राय 75,000 भाग को लोमगर्त कहते हैं। मतलब मुहूर्त को 7 बार 15-15 से भाग देंगे तो वो लोमगर्त आएगा। लिखा है कि 1 वर्ष में जितने लोमगर्त होते हैं उतने ही ब्रह्मांड में नक्षत्र है, उतने ही हमारे शरीर में सेल हैं। करीब 3 खरब आएगा। आप आधुनिक गणना से उसकी तुलना कर सकते हैं। तो ये अनुमान भी पहली बार 1985 में हुआ था कि ब्रह्मांड में कितने नक्षत्र हैं, तारा है। उसके बाद गौरव वर्ष है, गुरु का 12 वर्ष में एक परिक्रमा होती है, तो एक राशि का जो काल है मध्यम काल, उसको गुरु वर्ष कहते हैं। उसके बाद नक्षत्र काल वगैरह है, और बाकी आप किताबों में देख सकते हैं, उसके बाद विस्तार से नहीं जाऊंगा। फिर युगों का काल है, तो युग का लिखा है कि जैसे पंच संवत्सर महल जीवन है, तो 7 प्रकार के युग होते हैं। उनमें 5 प्रकार के युगों संवत्सरों से हम युग का निर्धारण करते हैं। ये मुख्य अर्थ है। एक अन्य अर्थ है कि 5 वर्ष का युग होता है। तीसरा अर्थ यह है कि जो वेदांग ज्योतिष का, ऋग ज्योतिष का जो 19 वर्ष का चक्र है, उसमें 5 वर्ष संवत्सर प्रकार के हैं, बाकी 14 वर्ष अन्य प्रकार के हैं। तो मैं संक्षेप में कैलेंडर के बारे में कह रहा हूँ। जैसे जो स्वयंभू मनु के समय का जो कैलेंडर था 29,000 BC से, उसमें गणना होती थी छंदों के माध्यम से, गायत्री से जगती छंद तक के, कि दिनमान मैक्सिमम 16 घंटे तक का होता है जो वेदांग ज्योतिष में है। तो ये लगभग 34-35 डिग्री अक्षांश के बीच में है। और जहाँ पर वेदांग ज्योतिष वाला मान मैंने अधिकतम मान 16 गुना होता है रात्रि का, ठीक वहीं पर मार्तंड मंदिर बना था कश्मीर में। आप चेक कर सकते हैं कि मार्तंड मंदिर का जो स्थान है वहाँ अधिकतम दिन का मान रात्रि मान से 1.5 गुना होगा। उसके बाद कार्तिकेय का मैंने कहा 15,800 BC में। परशुराम का काल था 6,177 BC, जो कि कलम संवत है, अभी भी केरल में चल रहा है। उसके बाद युधिष्ठिर के काल में 4 कैलेंडर शुरू हुए थे। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ 17 दिसंबर 3139 BC को। उस समय से युधिष्ठिर शक चला। उसके बाद कली संवत हर किताब में लिखा हुआ 3102 BC में 17 फरवरी के जैन मध्यरात्रि से गिनते हैं। उसके बाद परीक्षित को जिस समय राज्य दिया उन्होंने युधिष्ठिर ने, और वो लोग अभ्युदय के लिए गए, तो उस समय विजय संवत्सर खत्म हो रहा था और जय संवत्सर आरंभ हो रहा था। तो जय संवत्सर के आरंभ में वो लोग अभ्युदय के लिए गए हिमालय पर स्वर्गारोहण के लिए, तो उसको जय अभ्युदय शक कहा जाता है। उड़ीसा के करीब 100 शिलालेखों में उस जय अभ्युदय संवत्सर का उल्लेख है। उसके बाद आर्यभट्ट ने अपना समय लिखा है कि 60 वर्षों का जब 6 चक्र पूरा हुआ तब वो 23 वर्ष के थे, तो 6 चक्र को लोगों ने बाद में 60 वर्ष का चक्र कर दिया। वास्तव में वो 3100 BC की गणना कर रहे थे। उसके बाद शिशुनाग शक था। शिशुनाग का देहांत भारतीय पुराण गणना के अनुसार 1954 BC में हुआ। मैं 2 मिनट में बंद कर दूंगा। वो बर्मा में प्रचलित था शिशुनाग शक। उसमें सिद्धार्थ बुद्ध का समय दिया हुआ है और इसको कौजाद शक कहा गया है। शिशुनाग का मृत्यु 1954 BC में हुई। उसके बाद नंद का अभिषेक काल है, सभी पुराणों में है कि कली आरंभ के 1504 वर्ष के बाद उनका अभिषेक हुआ। तो नंद शक का खारावेल के शिलालेख में नंद शक का उल्लेख है। उसके बाद जैसे शुक्रक शक है, यज्ञ के सिद्धांत ज्योतिष दर्पण में है, 756 BC में हुआ था। बाकी 456 BC में श्रीहर्ष शक था, 612 BC में चाप शक था, जिसको चाप वंश तिलक का कहा है, चपठानी शक। उसमें दिल्ली के चाहमान राजा ने निनिवे को ध्वंस किया था। इसका 18 जगहों में ओल्ड टेस्टामेंट का उल्लेख है और उसका अनुमान यही है कि 612 BC में
निनेवे को दिल्ली के राजा ने ध्वस्त किया था। लिखा है कि सिंध के पूर्व के मेडेस के राजा ने उसको ध्वस्त किया। उसे मेडेस मतलब मध्य देश जिसको हम लोग कहते हैं, हिमालय और विंध्याचल के बीच में, वहाँ के राजा ने निनेवे को असीरिया के राजा ने ध्वस्त किया था। उसके बाद का हम लोग जानते ही हैं विक्रम संवत कब हुआ, शालिवाहन से। और इतना कहकर मैं पुनः धन्यवाद दूंगा। मैं कार्यक्रम को गति देते हुए आज इस सभागार में और इस सत्र में जिनकी महनीय उपस्थिति हम सबको प्राप्त हो रहा है, ऐसे हम सबके परम पूज्य श्रद्धेय परम आदरणीय गुरुवर आचार्य रामचंद्र पांडे गुरु जी का आपकी भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में यह कीर्ति फैल रही है। आप ज्योतिष शास्त्र के लक्ष्य प्रतिष्ठित विद्वान हैं। आपके बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा। अतः मैं आपसे अत्यंत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करता हूं कि आप अपने आशीर्वाद वचनों से हमें अवगत करें। सदा वृंदार ओम वृंदानंद संतोदायकम अनंत मंगलादारंदम शंकर मंगलम। मंचस्थ सभी विद्वान सभागार में उपस्थित विभिन्न स्थानों से पधारे हुए विद्वान, यहाँ के छात्र, आप लोग व्याख्यान सुनते सुनते थक गए होंगे, इसलिए मैं बहुत नहीं कहूँगा कुछ। मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं। ये वेद विभाग है और इससे जुड़ा हुआ ही कर्मकांड है, और उसमें जो कलश का स्वरूप होता है वही अध्यक्ष का स्वरूप होता है। यावत कर्म समाप्ति से इसलिए मुझे तो तब तक बैठना ही है जब तक कार्यक्रम की संपूर्ति नहीं हो। आज खगोल से संबंधित इस सत्र का विषय था, जिसमें आप लोगों ने विभिन्न विषयों पर सुना। मैं एक बार संक्षेप में अपनी उस पर सम्मति भी दे देता हूँ कि ये प्रोफेसर जयशंकर जी ने जो अपना व्याख्यान दिया चिट्ठियों पर और शोध सूत्रों पर, और उसमें उन्होंने पाइथागोरस के सिद्धांत का ये किया कि नहीं है, ये शोध सूत्रों का ही विषय रहा है। तो उसमें ये केवल ज्यामिति ही नहीं बल्कि उसमें गणित का भी इन्होंने कई जगह दिखलाया, दिग्दर्शन कराया। चित्रियों में जितनी ईंट लगती है वो पहले ही उसकी गणना कर ली जाती है, कितनी ईंट लगेगी और कितनी त्रिकोण ईंट लगेगी, कितनी चतुष्कोण लगेगी, कितनी त्रिकोण लगेगी, कितनी अर्धवृत्त लगेगी, ये सारी गणना करके बनाते थे। और इसका इन्होंने बहुत अच्छा प्रतिपादन किया। मैं इनको बहुत साधुवाद देता हूँ। और हमारे मित्र पुराने मौर्य जी ने अपनी बात करती हुई एक कहा कि ये यहाँ का दायित्व है, यहाँ से ये जाना चाहिए कि ये पाइथागोरस का सिद्धांत है। मैं थोड़ा सा इससे मतभेद रखता हूँ। ये दायित्व यहाँ का नहीं, ये दायित्व उन विज्ञान के लोगों का है जिन्होंने इसको पढ़ाया। कभी कंफ्यूज नहीं करता कि वैज्ञानिकों ने ही बताया, आज जो विज्ञान पढ़ाते हैं उन लोगों ने ही बताया है कि ये पाइथागोरस का सिद्धांत है। तो ये जिम्मेदारी उनकी है कि इस भ्रम का निवारण करना। तो जहां से ये भ्रम पैदा, जो भ्रम पैदा करता है दायित्व उसी के निवारण का होता है। आवाज आ रही है? फिर वही आ रही ने समझाया। और उसके पहले जो है, जैसे अभी हमारे उपाध्याय जी बोल रहे थे, भास्कराचार्य ने कोई अनुसंधान नहीं किया, वो पुरानी बातों को लाकर रख दिया। भास्कराचार्य हुए थे 11वीं शताब्दी,
न्यूटन हुए थे 17वीं में। भास्कराचार्य ने लिख दिया आकृष्ट शक्तिश्च महिते आयत हस्थम गुरुन स्वाभिमुखम आकृष्यते तत्पतति विभाति समय समन्तात। इतने ही नहीं, अनुवाद में भी बड़ी गलतियां की है। हमारे यहाँ नक्षत्र को ऋक्ष कहा जाता था, तो सप्तऋक्ष 7 ऋषि थे, नक्षत्रों को ऋक्ष कहा जाता था। इसका अनुवाद करते समय उन लोगों ने अपनी डिक्शनरी देखा होगा, ऋक्ष माने भालू, तो सप्तर्षियों का नाम रखा है ग्रेट बियर और लघु सप्तर्षि का नाम दिया है स्मॉल। तो इस तरह के अनुवाद हैं और यही लोग इस विज्ञान के कर्ता धर्ता हैं। हमारे यहाँ सूर्य की परिकल्पना जो की गई, अभी किसी ने बोला था, पूर्व सत्र में बोला था कि अग्नि सोमात्मकम जगत, इसको बताने वाला हमारा वेद। तो वेदों को समझने के लिए हमको पहले वेदांगों के साथ वेद का अध्ययन करना, तब हम वेदों को समझ सकते हैं, अन्यथा वेदों को समझ नहीं सकते। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वेद में जैसे सृष्टि से आरंभ करते हैं ना, सृष्टि का प्रश्न उस समय भी अनुत्तरित रहा, आज भी अनुत्तरित है, भविष्य में भी संभावना नहीं है कि इसका उत्तर आएगा। जब कह दिया कि अस्याध्यक्षः परमे व्योम, होगा को स वेद यदि वा न वेद, उस परमात्मा को भी पता नहीं, ये रहस्य पता है सृष्टि का कि नहीं पता है। जब ये ऋषि एक मंत्र दृष्टा ऋषि बोल रहा है, आज न जाने कितने देश के वैज्ञानिक जुटे हुए हैं सृष्टि के रहस्य को जानने के। इसका समाधान अगर देगा तो कोई वेद का ऋषि ही देगा और उसी के पास इसका समाधान होगा जिसे हमें। अभी क्रम आया था, शत्रुघ्न जी ने कहा कि इस ब्रह्मांड के, इस सूर्य के प्रकाश के बाद कहा कि अंधकार है, लेकिन उसके बाद भी कुछ है। इसको गर्ग संहिता में एक कथा के माध्यम से बताया है कि एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गए उस गोलोक में भगवान से मिलने के लिए। द्वारपाल से उन्होंने कहा कि मुझे भगवान से मिलना है। तो उनकी एक पार्षदा थी सत्यचंद्रानना, उससे जाके द्वारपाल कहा कि कुछ लोग आए हैं मिलने। तो सत्यचंद्रानना आई उनका इंटरव्यू लेने। कहती आप कौन हैं? उन्होंने कहा हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। कहाँ से आए हैं? अरे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, कहाँ से आएगा क्या? कहें आकाश में जो सब प्रकाश पुंज दिखाई दे रहा है, ये सब एक एक ब्रह्मांड है। लगता है पहली बार घर से निकले हो आप। कहते हैं जैसे एक उदुम्बर का वृक्ष होता है, गूलर का, उसमें हजारों फल होते हैं और हर फल में बहुत से कीड़े होते हैं, लेकिन एक फल का कीड़ा दूसरे फल के कीड़े के विषय में नहीं जानता। इसी तरह से आपका ज्ञान इतना सीमित है कि आप जिस ब्रह्मांड को आए हैं उसके अलावा नहीं जानते कि आगे भी कोई ब्रह्मांड। तो इस माध्यम से, इस कथा के माध्यम से ये बताया कि इस अनंत कोटि ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड में अनेक सूर्य हैं। अपने यहाँ 12 आदित्यों का वर्णन आता है, लेकिन वही अंत नहीं है, वो किस प्रसंग में आता है, अनेक प्रसंग में आता है। और सूर्य की रश्मियों का वर्णन आता है। सूर्य की 7 रश्मियां, सभी बच्चे पढ़े हैं कि सूर्य की 7 रश्मियां होती हैं। ये आजकल पढ़ाया जाता है उनको कलर से, रंग से। ऋषियों ने उसको बताया है उनके नाम से, सुषुम्ना, हरिकेश, विश्वकर्मा, विश्वव्यचा, संयत, वसु, अर्वा, वसु, सुराट। और ये भी बताया है कि किस रश्मि का प्रभाव कहाँ होता है। इसका विधिवत वर्णन आपको वेद में, पुराणों में सब जगह मिलेगा। और उन 7 रश्मियों में से प्रत्येक रश्मि को 3 भाग में विभक्त किया गया।
वृष्ट सर्जना नाड़ी, हिम सर्जना नाड़ी, घर्म सर्जना नाड़ी। और हिम सर्जना नाड़ी में 3 भेद हुए, उनमें 100 रश्मियां। फिर घर्म सर्जना नाड़ी में 300 भेद हुए, उनमें भी 100 रश्मियां। और वृष्ट सर्जना नाड़ी में 4 भेद हुए और सब में 100 रश्मियां। आप जोड़ेंगे तो 1000 रश्मि, इसीलिए सूर्य को सहस्र रश्मि भी कहा जाता है। तो इस तरह की अनेक बातें हैं जिनको हम पढ़ेंगे वेद को, और जिज्ञासा से पढ़ेंगे और उसको विज्ञान समझ के पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। शत्रुघ्न जी ने एक और बात कही कि भूगोल और ब्रह्मांड, ये नाम ही इसीलिए पड़ा। दुनिया का कोई साहित्य नहीं है जिसमें पृथ्वी के वास्तविक स्वरूप को गोल बतलाया गया हो सिवाय वेदों के। और वेदों को ही बताया गया है कि पृथ्वी भी चलती है, सूर्य भी चलता है, वेद नहीं बताया। तो आज नवीनतम विज्ञान के समक्ष भी वेद उसी तरह खड़ा है जैसे आरंभ में था। आवश्यकता है हमको अपनी दृष्टि बदलने की और वेदांगों के साथ इस वेद का अध्ययन करने की। हमारे एक वक्ता विनय कुमार पांडे ने वेदशालाओं पर चर्चा की। जो वेदशालाओं में कार्य तब प्रारंभ हुआ जब हमारी प्रज्ञा कुछ क्षीण होने लगी, हमारी दृष्टि क्षीण होने लगी, तब हम उसको करें। अन्यथा हमारे ऋषियों ने उनको यहीं बैठे बैठे वो सब वेद कर लेते थे। 27 नक्षत्रों को उन्होंने किसी वेदशाला से नहीं ढूंढा था और 27 उपनक्षत्रों का भी वेद में उल्लेख है और उनके इर्द गिर्द 1,08,00,000 तारों का भी उल्लेख है, लेकिन नाम नहीं दिया है। ये बताया है कितने तारे और अन्य आकाश में कितने तारे हैं उनके विषय में ऐसा मुझे उल्लेख कहीं नहीं मिला है। हो सकता हो, ये मैं नहीं जानता। हमारे मित्र अरुण कुमार उपाध्याय जी, इन्होंने कहा कि मेरा विषय नहीं था, मैं इस समाज का नहीं। ये वैसे भी पहले त्रिपाठी के उपाध्याय है और ये पुलिस विभाग में थे। तो पुलिस कोई योजना बना के तो काम करती नहीं है, उसको तो समस्या आती है, प्रमोशन की कार्य करती है। तो इनके सामने समस्या अपने सेवानिवृत्ति के बाद आई और उन्होंने ज्योतिष में अद्भुत काम किया और इनको भगवान मस्तिष्क नहीं कंप्यूटर दिए हैं। इनको इतनी बातें याद रहती हैं, इतना गणना करते हैं ये कि देख के आश्चर्य होता है। और इस अवस्था में भी ये एक छात्र से ज्यादा परिश्रम करते हैं। तो मैं उनके कार्य की भी मैं सराहना करता हूँ। अब मैं सिर्फ 2-3 बात कर करके आप लोगों के आगामी कार्य को बाधित नहीं करूंगा। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि वेद विज्ञान का मूल है। किसी भी विज्ञान का आप मूल ढूंढेंगे तो इसमें मिलेगा। अभी पूर्व सत्र में मैं सुन रहा था, आयुर्वेद की बात हो रही थी। औषधियों का विवेचन, प्रकृति का विवेचन वेद में बहुत अच्छे ढंग से है। हम सिर्फ अपने क्षेत्र में आते हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में आते हैं, तो ज्योतिष के क्षेत्र में ग्रहों का और नक्षत्रों का मुख्य रूप से प्रयोग होता है और इनको परिभाषित सर्वप्रथम वेदों ने किया। जैसे अभी किसी ने, अरुण कुमार उपाध्याय जी ने ही चर्चा किया डेविड पिंगरी का। डेविड पिंगरी अपने को सभी शास्त्रों में निष्णात मानते थे। तो मैं उनसे 93 में मिला था। उसमें धर्मशास्त्र का एक मैन्युस्क्रिप्ट पढ़कर उस पर अध्ययन कर रहे और उनकी शिष्या किम बोलकर मुझसे सिद्धांत शिरोमणि पढ़ती। तो उस समय मेरी उनसे कुछ चर्चा हुई थी, तो उनको भी कुछ ऐसे पूर्वाग्रह ग्रसित तो ये लोग होते ही थे, उनको था। तो मैंने वहाँ उनको कई चीज़ों पर मैंने इस पर प्रतिवाद किया था और स्वीकार भी किया। इस तरह से हम अपने शास्त्रों के प्रति यदि हम निष्ठावान रहेंगे, अपने शास्त्रों का अध्ययन करते रहेंगे, तो दुनिया के हर आक्षेप का उत्तर अपने आप हमारे मस्तिष्क में आता रहेगा।
हम देते रहेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि किसी आक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। मैं अधिक कुछ नहीं बोलूँगा, मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं केवल कलश के स्वरूप में हूँ, केवल दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ। मैं इस कार्यक्रम के आयोजक उपेंद्र त्रिपाठी को बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम करते रहें और पूरे विद्यालय को उनका समागम होता रहे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद को विराम देता हूँ। गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपका विद्वतापूर्ण व्याख्यान निश्चित रूप से हम सबके लिए काफी सिद्ध होगा। अब मैं कार्यक्रम को गति देते हुए अंत में औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए वेद विभाग के शोध छात्र भास्कर नाथ तिवारी जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और समागत अतिथियों के प्रति आभार। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। उपस्थित सभी गुरुजनों को प्रणाम। वैदिक विज्ञान केंद्र के आज द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के अंतर्गत जो वैदिक विज्ञान के विविध आयाम के अंतर्गत तृतीय सत्र का जो कार्य चल रहा है उसमें उपस्थित हमारे प्रथम वक्ता प्रोफेसर जयशंकर जी, पूर्ण प्रज्ञा महाविद्यालय उडुपी कर्नाटक जो संस्कृत विभाग के आप विभागाध्यक्ष हैं, आप अपना समय निकाल करके हम सभी के समक्ष षोडश सूत्र का बहुत ही अच्छा विषय हम सभी को स्थापित करके और ज्ञानार्जित हम लोगों को ज्ञान अर्जन कराया, इसके लिए आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस वैदिक विज्ञान केंद्र के अतिथि अध्यापक डॉक्टर एस.एल. मौर्य सर जी, आपने भी इस विषय को जो आप इस विश्वविद्यालय में इस विषय को पढ़ाते हैं उसके माध्यम से भी और शूद्र सूत्र के माध्यम से हम सभी को जो ज्ञानार्जन कराया है उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अभी हम सभी के बीच उपस्थित नहीं है प्रोफेसर विनय कुमार पांडे गुरु जी, जो आचार्य ज्योतिष विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने भी वेदशाला के माध्यम से हम सभी को आज के विषय को स्थापित करके समझाया अपने विषय के माध्यम से। मैं आपके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। प्रोफेसर शत्रुघ्न त्रिपाठी गुरु जी जो ज्योतिष विभाग के आचार्य हैं और इस समय वर्तमान वार्डन पद पे भी आप उपस्थित हैं। आपने आकाश गंगा के माध्यम से हम सभी को यहाँ बैठे बैठे आकाश गंगा का दर्शन कराया, उसके प्रति मैं आपको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मुख्य वक्ता के रूप में उड़ीसा से आए हुए पूर्व आईपीएस एवं आरक्षी महानिदेशक अरुण कुमार उपाध्याय जी, आपने अपना कीमती समय निकाल करके हम सभी के समक्ष भारत की काल गणना के विषय में जो जानकारी हम सभी को दिया है उसके लिए भी मैं आपका आभारी हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे ज्योतिष विभाग के प्राचीन पितामह गुरु जी जो पूर्व संकाय प्रमुख भी रह चुके हैं और इस कार्यक्रम के वरुण हैं आप। जो भी हम कार्य करते हैं उसमें वरुण कर्म साक्षी होता है। इस कार्यक्रम के कर्म साक्षी आप हैं। कैसा किसने क्या कार्य किया है उसके प्रमाण आपके पास हैं। मैं आपको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आज इस तृतीय सत्र के संचालक डॉक्टर पंकज तिवारी जी जो वैदिक विज्ञान केंद्र के अतिथि प्राध्यापक भी हैं और कुशल संचालक, आज के आप कुशल संचालक भी हैं,
मैं आपको आज के इस सत्र के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। और आप सभी जो श्रोता अपना समय निकाल करके अभी तक इस सभा में उपस्थित हैं, मैं आप सभी को समन्वित रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इस वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी गुरु जी, जो अपने नाना प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हम सभी को ज्ञानार्जन करा रहे हैं, मैं आपको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और प्रणाम करता हूं। नमो नमः।